Hi everybody. In last video you're talking about the pronouns, and in that video we discussed about the definition of pronoun and we came to know about personal pronouns. In that regard, in that video we made over there a table that consists on all personal pronouns. Further we discussed about the classes, the classification of pronouns. They were first person pronouns, second person pronouns and third person pronouns. Furthermore, we also discuss about the cases of pronouns, that pronoun as object and pronoun as subject and pronoun as position as possessive. So there were the cases of pronouns: subjective case, objective case and possessive case. Today we gonna discuss about the kinds of pronouns. In that regard, the first kind of pronoun, that is possessive pronouns. About possessive pronouns in detail we discussed on that day, in that video, in the previous video. How many are possessive pronouns, what are they and what are their function. About that we also discussed about the possessive pronouns with examples. But today we gonna kinds of pronouns, and in kinds of pronouns, the first one, the first kind which we gonna discuss today, that is possessive pronouns. So what are possessive pronouns? Once again please, a pronoun indicating position, a pronoun indicating position. ऐसा pronoun जो position indicate करता हो, position. So what is a position? Position means indicating the ownership, indicating the ownership. As on that, in that video I told you that by possessive case we mean that the ownership of a noun, the ownership of a person on a thing, the ownership of a person on a thing is called possessiveness or possession. In this way here it is again, because in kinds of pronouns, possessive pronouns are also one kind of pronouns. So possessive pronouns, a pronoun indicating position, a pronoun which tells about the ownership of a person on a thing, that is the possessive pronoun. Okay, they are the possessive pronouns. For example, mine, my, mine, my, mine, my, mine, mine, or ours, your, yours, his, hers, their, theirs, its. These are pronouns which we say that they are the possessive pronouns. So according to pronouns, we can use a possessive pronoun instead of a noun phrase. We also can use a possessive pronoun instead of a noun phrase, as like in these examples. Is that Arif's bicycle? Is that Arif's bicycle? Is that Arif's bicycle? Here by apostrophe s, an ownership has been shown on the bicycle of a person. The person is Arif. Arif has the ownership on the bicycle, and the ownership or the possessive case has been shown by apostrophe s. Is that Arif's bicycle? No, it's my bicycle. No, it's my bicycle. Here, look at here, my. My is a possessive pronoun. No, it's my bicycle. But here is a noun, bicycle. So the sentence, it's my bicycle, it's a noun phrase.
Now, no, it's mine. No, it's mine. Look at this. In short, we said that no, it's mine. That's why we say we can use a possessive pronoun instead of a noun phrase. So this means, this sentence means that, as like here in this example, is that Arif's bicycle? No, it's my bicycle. And shortly, as instead of a noun phrase, we used here in this short sentence a possessive pronoun. No, it's mine. Mine is a possessive pronoun which we used here as a possessive pronoun instead of a noun phrase. In the second example here, whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? Is it your house? Again a question. Whose house is this? Is it your house? A person is standing here and there is an house, there is a building, there is a house. I asked about the house. Whose house? Whose house is this? Whose house is this? So a person is standing beside me. So I asked him, is it your house? Is it your house? Now here the possessive pronoun your has been used. Is it your house? Because your tells us the possessiveness or the ownership on the house. The ownership on the house for a person. So is it your house? And like that, instead of a noun phrase, we also use it as yours. Is it yours? Is it yours? Here it is a noun phrase, the house is a noun. Is it your house? Now, instead of a noun phrase, instead of your house, we here state that, is it yours? Is it yours? My bag is brown. My bag is brown. Mine is brown. My bag is brown. Brown bag. Here is a bag. Here is my. My is a possessive pronoun. Bag is a noun. Brown, that is a color, and it is an adjective. So in this sentence, instead of a noun phrase is like bag and my. So here mine is brown. Mine is brown. My is a possessive pronoun. Mine is also a possessive pronoun which we used here instead of a noun phrase. This is my car. This is my car. This car is mine, as I told you. It's mine. So it's mine in short. It's mine. Mine, for possessive case of pronoun mine, has been used instead of a noun phrase. Okay, dear students. अक्सर हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप साथ में लिखते क्यों नहीं वाइट बोर्ड पे। पिछला वीडियो, ये पिछले वाला नहीं बल्कि इससे आगे वाला जो हमारा वीडियो है वो मैंने साथ में वाइट बोर्ड पे क्लास लेते हुए, वीडियो बनाते हुए और क्लास बनाते हुए मैंने वाइट बोर्ड पे साथ क्लास में लिखना और साथ क्लास चलाना और साथ लेक्चर चलाना तो टीचिंग करना, ये मैंने जारी रखा। फतेह वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 20 मिनट से भी बढ़ गई, 20 मिनट से भी बढ़ गई। लिहाजा हम जो बोर्ड पे ऑलरेडी अपने लिए लिख लेते हैं ताकि तुम्हारा टाइम बच सके और वीडियो शॉर्ट बन जाए। वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए हम पहले से ये लिखा करते। लेकिन हमारे साथ ऐसे बिगिनर्स होते हैं, ऐसे बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं जो अंग्रेज़ी की शुद्ध बुद्ध से भी नावाकिफ़ होते हैं। हमारा मकसद बिगिनर्स को आगे ले आना है ताकि वो भी हमारे साथ इस कारवां में शरीक हो सके, अंग्रेज़ी सीखने में वो भी कामयाब हो जाए और उनका शौक़ ज़ायल ना हो। अगर हम मुसलसल अंग्रेज़ी बोलते रहे, अंग्रेज़ी में ही क्लास लेते रहे, अंग्रेज़ी में ही चीज़ें डिस्कस करते रहे तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। पॉसेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, मलकियती प्रोनाउन या ऑनरशिप की प्रोनाउन या वो प्रोनाउन, वो इसमें ज़मीर जो पोजीशन जो जाहिर करता है, जो हमें बताता है किसी शख्स का, किसी नाउन का, किसी फ़र्द का, किसी औरत का, किसी खातून का, किसी भी जानदार का, किसी भी नाउन का, किसी चीज़ पर ऑनरशिप, किसी चीज़ पर मलकियत जाहिर करता हूँ, उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सो अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजीशन यानी ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन। समझ आ गई होगी आपको।
पर माइन, माई और आवर्स, योर, योर्स, हैज, हर्स, दियर, दियर्स। इस पे तो उधर काफी लंबी बहस हो चुकी थी, आपने उधर से समझ लिया होगा। यहां पर लिखने का मकसद यह कि चूंकि ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में से भी है, लिहाजा शुरू इसी से कर दिया। उधर तो हमने डिस्कस कर दिए थे केसेस ऑफ प्रोनाउंस में, लेकिन यहां हम इन्हें काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दीज आर द प्रोनाउंस जिसको हम पॉजिटिव प्रोनाउंस कहते हैं। वी कैन यूज अ पॉजिटिव प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन फ्रेज। हम एक पॉजिटिव प्रोनाउन को कहां भी यूज कर सकते, कैन यूज यानी कि यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर हम चाहे तो एक पॉजिटिव प्रोनाउन को, एक अनरशिप वाले प्रोनाउन को, एक मलकियती प्रोनाउन को हम कहां यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अ नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज की जगह हम यूज कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ अ नाउन फ्रेज हम यूज कर सकते हैं। आप लोगों को यह भी एम्बिग्विटी ज़हन में आ गई होगी कि नाउन फ्रेज से मतलब क्या है या कैसे हम नाउन फ्रेज की जगह यूज करेंगे। अब इधर इस मिसाल में से देखिएगा, इज दैट आरिफ्स बाइसाइकिल, क्या ये आरिफ का बाइसाइकिल है? नो इट्स माई बाइसाइकिल, नहीं ये मेरा बाइसाइकिल है। नो इट्स माइन। इधर देखिएगा कि आरिफ्स यह अपोस्ट्रोफी एस से हमने ऑनरशिप साबित कर दी या जाहिर कर दी, शो कर दी। किस चीज पर? बाइसाइकिल पर। किसका? आरिफ का। आरिफ का ऑनरशिप है बाइसाइकिल पे। ओके, ये एक क्वेश्चन है, इज दैट आरिफ्स बाइसाइकिल? नो इट्स माय बाइसाइकिल। बंदे ने जवाब दिया नो इट्स माय बाइसाइकिल, नहीं ये आरिफ का नहीं, ये मेरा बाइसाइकिल है। तो यहां पर माय ने फिर ऑनरशिप का इजहार कर दिया, ऑनरशिप शो कर दिया बाइसाइकिल पे। माई बाइसाइकिल, मेरा बाइसाइकिल। तो यहां मेरा जो भी पर्द है, मैं हूं जो भी है, वो मेरा बाइसाइकिल से ऑनरशिप का ताल्लुक वो माई ने शो कर दिया। इधर बाइसाइकिल से ऑनरशिप का ताल्लुक आरिफ पर एपोस्ट्रोफी एस ने शो कर दिया। और आप इधर देखिए, इस छोटे से जुमले में हमने क्या कर दिया, नाउन प्रेज की जगह एक पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, नो इट्स माइन। अब देखिए इधर से इधर तक इट्स माइन, माइन, इधर माई एंड माइन। तो माई का भी यूज हो गया जुमले में, आप समझ गए होंगे, और माइन का भी यूज हो गया। और यह बात भी वाजे हो गए कि इंस्टेड ऑफ अ नाउन प्रेज, यानी ऐसा जुमला जहां नाउन हो, जहां जुमले में क्या हो, ऑनरशिप के लिए नाउन मौजूद हो, तो नाउन फ्रेज की जगह हम इस तरह करेंगे कि नो इट्स माइन, नो इट्स माइन, नहीं ये मेरा है। आप दूसरे जुमले में दूसरा मिसाल है ये एक अनदर सेंटेंस, हुज हाउस इज दिस, ये किसका मकान है। फर्ज किया हम एक जगह खड़े हुई है, कोई बिल्डिंग है, कोई मकान है सामने, किसी ने पूछ लिया ये किसका मकान है, फिर मैं भी उधर खड़ा था तो वो मुझे मुखातब हुआ, इज इट योर हाउस, इज इट योर हाउस। तो यहां पर योर का ताल्लुक हाउस के साथ पॉजिटिव केस यानी ऑनरशिप, योर का ऑनरशिप ऑन द हाउस जाहिर हो गया। और फिर हम नाउन फ्रेज की जगह पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, इज इट योर्स, इज इट, उसने मुझसे पूछा इज इट योर हाउस, नाउन फ्रेज, इस जुमले में नाउन फ्रेज यूज हो गया, नाउन फ्रेज है जुमला। ओके, फिर उसने दोबारा कहा इज इट यूर्स, इज इट यूर्स, यूर्स। हाँ, समझ आ गई। तो यहां पर प्रोनाउन को हमने बतौर नाउन फ्रेज की इंस्टेड ऑफ नाउन फ्रेज वी आल्सो यूज डियर प्रोनाउन। ओके, माई बैग इज ब्राउन, माई बैग, बैग के साथ मेरा ताल्लुक, बैग किसका है, बैग पर मलकियत किसका है, माई के लफ्ज ने, लफ्ज माई ने यानी प्रोनाउन माई ने ऑनरशिप का इजहार कर दिया बैग पे। माई बैग, मेरा बैग, बैग पे मेरा कब्जा, बैग पे मेरा मलकियत, मेरा बैग इज ब्राउन, ब्राउन है, ब्राउन इधर एडजेक्टिव है। माई बैग इज ब्राउन, मेरा बैग ब्राउन है। अब देखिए यहां पर बैग है, बैग नाउन है, ब्राउन एडजेक्टिव है, माई पॉजिटिव है। इसको नाउन फ्रेज को चेंज करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन से। सो माइन इज ब्राउन, माई बैग की जगह क्या लगा, माइन इज ब्राउन, माइन इज ब्राउन। एंड सेम इज द एग्जाम्पल हियर टू, दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कार है। दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। यहां पे भी कार और माइन, यहां पे भी माई और कार, माई और कार का अनरशिप का ताल्लुक, कार और माइन का अनरशिप का ताल्लुक। और यहां पे नाउन फ्रेज की जगह हमने प्रोनाउन यूज कर दिया, इट्स माइन, इट्स माइन। ओके डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ आप कुछ न कुछ समझ गए होंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। अपना कोशिश कर दीजिएगा, इसी तरह की और मिसालें आप बना दीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। जितने भी प्रैक्टिस करोगे इतना ही परफेक्ट हो जाओगे। फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।